welcome back to Unfiltered with Anushka. And today's episode is like one of the most requested episodes on my channel. It has to be an update video because I have been like inactive on podcast for the longest time now. And I think मैंने last video December में post किया था. उसके बाद I haven't got some tea for you guys to listen to, so today's episode is something like that. You know what? This is my first video that has been published on YouTube, so kudos to that. I am so excited for you guys to listen to it and watch me speak. So I am just chummies for you guys. So the very most important reason for me not being active on podcast, YouTube family को तो मैं update कर चुकी हूँ कि मैं क्यों active नहीं आई हूँ. It's because of my boards that were going on. I was in 12th standard and मेरा 12th standard complete हो चुका है. I am in the first year now. But I was really busy with studies and बहुत सारा pressure था मेरे ऊपर and मुझे podcast shoot करने के लिए बहुत time चाहिए and वो घाई गड़बड़ी में I just forgot about my podcast. मुझे quit नहीं करना था December में. I wanted to quit in the month of January, but मुझे time नहीं मिला because of studies and a lot of pressure that was inbuilt in myself. So I had to take a lot of time and बहुत सारा कुछ करना था मुझे. On a quick note, मेरे papers बहुत ज़्यादा अच्छे गए. I'm just waiting for my result to come out. Starting off with my current schedule, मेरा schedule तो like बहुत ज़्यादा complicated रहा है बहुत time से, because जब 12th का board चल रहा था तभी तो मेरा schedule पूछो ही मत. Like it was 12 hours का पढ़ाई and somewhat like that, because I was so into studying that I had forgotten about all the other things. Trust me. But अभी के time पे like if you ask me, there's just reels and content and YouTube podcast shoots सब कुछ, you know, that's the only schedule that I have for a while now. But productive रहना and time management is a really very important thing. Time manage करना तो मुझे पहले से ही नहीं आता था. अभी like as I've grown into this era कि मतलब YouTube करना है, Instagram पे reels डालना है and I have so many other things to do, मुझे ऐसा लगता है कि I have grown up to managing time properly and efficiently because मैं ना हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम देती हूँ. Like अगर मैं YouTube वीडियो शूट कर रही हूँ तो I know that I have to complete this YouTube video within an hour. And I think this is a very prominent feature of managing time कि तुम कितने time में क्या क्या काम complete करते हो. So for me, I think मेरा YouTube का shoot, Instagram का shoot and YouTube shorts के लिए shoot करना, it's a very big task. And जितना ही on camera easy लगता है उतना ही off camera बहुत ज़्यादा difficult होता है. मैंने भी पहले यही सोचा था कि यार बहुत ज़्यादा easy होगा YouTube का shoot, Instagram का shoot and बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं तो क्यों नहीं. But this is a very very huge field and इसमें you have a lot to do. मतलब lighting, सेटअप, बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं, कैमरा अच्छा है कि नहीं, मेरा माइक अच्छा है कि नहीं, वो सब देखना एंड यू हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू. सो आई थिंक दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू manage time efficiently, plus it is very important for you to know that this field is not easy. मतलब मैंने पहले ऐसे ही सोचा था कि यार कर लेंगे, this field is really easy and अगर मुझे इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं. I had this interest since like 10th के ending में because मैं 10th standard में बस यही सब करती रहती थी. मतलब YouTube पे कैसे views आए, कैसे you know attention seek करे लोगों का, यही सब मैं देखती रहती थी and मेरा पूरा feed उससे भरा था. हर एक field में उतनी ज़्यादा मेहनत रहती है and I think कोई भी फील्ड में आप जाओ, कोई भी, इट्स नॉट इवन 1% ईजी. मैनेजिंग टाइम इज अनदर लेवल ऑफ यू नो इंटरेस्ट दैट आई हैव कम अप टू दीज डेज बिकॉज मैं पहले बहुत गंदी तरीके से टाइम मैनेज करती थी. लाइक कितने भी देर शूट चल रहा है, चलने दो, खाना नहीं खाना है, ये वो. एंड आई सॉ दैट चेंज इन माई हेल्थ एंड मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था तब से. एंड देन मेरी मम्मा ने मुझे
बहुत अच्छा कुछ बताया कि लाइक तुम टाइम मैनेज करा करो. लाइक इफ़ यू आर गिविंग लाइक 1 hour टू यूट्यूब, यू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट विद इन एन आवर. थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट यू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट विद इन एन आवर्स टाइम. सो आई जस्ट thought that in my mind and मैंने सब डायरी में, मेरे पर्सनल डायरी में सब लिख के रखा कि हाँ मतलब आई हैव टू फिनिश दिस इन एन आवर. इंस्टाग्राम रील्स इतने टाइम में करना है, यूट्यूब शॉर्ट्स इतने टाइम में करना है, ये वो. सो आई थिंक बहुत ज़्यादा मायने रखता है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो टाइम मैनेजमेंट में आता है वो है यू शुड बी ओवर डूइंग थिंग्स. तो अभी सपोज जैसे मैं बता रही हूँ तुम लोग को कि मैं इंस्टाग्राम रील्स भी करती हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स करती हूँ, आई गिव टाइम टू यूट्यूब वीडियोज़ एंड मैं पॉडकास्ट भी करती हूँ. सो आई मेक श्योर दैट आई ईट एवरी डे. मतलब मैं अपना प्रोटीन इंटेक लूँ, मैं स्किप ना करूँ मील्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि लोग क्या करते हैं अक्सर मैंने देखा है कि लाइक दे मतलब अगर टाइम मुझे मैनेज करना है तो मैं स्किप कर दूँगी एक मील, चलेगा मुझे, मैं आई एम नॉट दैट हंग्री. बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बैड आइडिया क्योंकि तुमको प्रोटीन का इंटेक उतना ही ज़्यादा बॉडी में ज़रूरी है जितना तुम्हारा कंटेंट ज़रूरी है. मैंने भी ऐसा किया है बहुत बार, स्किप करती थी मैं मील्स एंड देन आई रियलाइज्ड कि स्किपिंग इज़ नॉट अ गुड आइडिया, नेवर अ गुड आइडिया. एंड तुम्हारे बॉडी के लिए पानी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगी बट यू शुड नेवर बी स्किपिंग मील्स. आई थिंक प्रोटीन स्किप करने से ना मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है एंड उसके वजह से आई गेट अ लॉट ऑफ डिजीजेस. हर एक बॉडी का अलग अलग होता है बट फॉर मी इट्स द सेम. कमिंग ऑन टू वाटर, पानी पीना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया था कि मैं कितना ग्लासेस पानी पीती हूँ दिन में. जब मेरे बोर्ड्स चालू थे तब मैं बहुत ज़्यादा पानी पिया करती थी बिकॉज आई हैड अ बॉटल विच आई यूज़ टू कीप विथ माई सेल्फ कि मैं पीऊँगी पानी जब भी मुझे प्यास लगेगी. बट नाम लाइक पढ़ाई नहीं करती तो मैं पानी क्यों रखूँ, दैट्स माई मेंटालिटी. बट अभी जब शूट चालू रहता है तब आई मेक श्योर दैट आई कीप अ बॉटल ऑफ वाटर विथ माई सेल्फ. जब भी लाइक मेरा मन करे पानी पीने का, मुझे प्यास लगे बहुत, and I make sure that I drink water like every half an hour, every 15 minutes after my shoot. So I think ये हैबिट अगर तुम बना लोगे ना तो it would be really very easy. क्योंकि मैं ना पहले बहुत कम पानी पीती थी. It's the same with my mother. My mom drinks बहुत ज़्यादा कम पानी and I think ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि काम में भूल जाते हैं पानी पीना. बट यू शुड बी अवॉइडिंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज वाटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी. अगर तुम्हारी बॉडी को पानी नहीं मिला तो डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी एंड बहुत सारे डिजीज़ भी हो सकते हैं. हाइड्रेट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मैंने बोला था यूट्यूब वीडियो में कि आई वुड बी आंसरिंग सम ऑफ योर क्वेश्चंस. तो मैं क्वेश्चंस तो ऐसा डायरेक्टली आंसर नहीं करूँगी बट आई वुड पिक अप अ पॉइंट फ्रॉम दैट क्वेश्चन एंड आई वुड ट्राई टू स्पीक ऑन दैट. सो इट वुड बी रियली ईजी बिकॉज क्वेश्चंस आंसर करना बहुत टाइम लेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. सो आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट आइडिया. सो स्टार्टिंग ऑफ विथ हाउ डू यू स्टे प्रोडक्टिव ऑल द टाइम. प्रोडक्टिव रहना इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटा दैट आई लर्नड इन दीज फ्यू मंथ्स. पहले तो कैसा होता था ना कि मैं कुछ भी कभी भी कर लेती थी एंड अगर मन नहीं किया तो आई यूज्ड टू प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट. बट तुम्हारा ऐसा एक स्केड्यूल बन जाता है कि यू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट. मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं 11th में क्या करती थी कि मेरे जो असाइनमेंट्स रहते थे वो मैं उसको आगे ढकेल देती थी कि यार चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तेरसों कर लेंगे. एंड फिर वो इतना ज़्यादा बढ़ते गया कि आई हैड टू कंप्लीट 10 असाइनमेंट्स इन अ डे एंड मैं पूरी रात बैठ के कर रही थी. सो इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. मैं सजेस्ट करूँगी कि प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो बिकॉज इट इज़ अ रियली बैड आइडिया. तुमको अगर वो टाइम पे काम नहीं जम रहा है करना, यू टेक थोड़ा सा रेस्ट एंड डू इट लेटर बिकॉज आई थिंक there are a lot of people in this world who do these things and I think बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे. But now in these 2-3 months I've learned कि being productive is the most valuable thing that you've ever got in your life. देखो अगर तुम ऐसे ही वेले ही पड़े हो, बेड पे पड़े हो, तुमको कुछ काम ही नहीं है, मेरे को अंदर से ना बहुत ऐसा ये होता है कि यार मेरे पास कुछ करने को है नहीं, आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहती हूँ एज यू गाइज नो.
मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोगों को देखती हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हैं, दे गोइंग टू न्यू सिटीज़, दे एक्सप्लोरिंग न्यू कंट्रीज़ एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग न्यू फोटोग्राफी स्किल्स, दे आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. एंड मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैं बहुत पीछे हूँ उनसे एंड मुझे भी कुछ करना चाहिए. मैं वेले के जैसे बैठी हूँ इधर. एंड मुझे ऐसा बहुत लगा था जब मेरे 10th के बोर्ड्स ख़त्म हुए थे तब मेरी 3-4 महीने की जब छुट्टी मिली थी मुझे, तब मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यार मैं क्या कर रही हूँ यार इस छुट्टी में, कुछ नहीं कर रही मैं, बस वेले की तरह पड़ी हूँ इधर बेड पे. एंड तभी फिर आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल ऑफ माइन. मतलब तभी नहीं स्टार्ट किया, 11th में स्टार्ट किया, बट तभी आई ग्रैब्ड सम आइडियाज़ ऑन हाउ टू बी एक्टिव ऑन यूट्यूब एंड हाउ टू पोस्ट. ये सब मुझे पता नहीं था क्योंकि तो अभी आई एम इन टू दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ वेर एन आई हैव लर्नड अ लॉट. मतलब फ्रॉम द स्क्रैच. मतलब जैसे मैं बताती हूँ आप लोग को कि 10th स्टैंडर्ड के एंडिंग में मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक when I see myself growing I get so very happy कि हाँ भाई मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया है अपने लाइफ में एंड मैं इतनी आगे बढ़ के आई हूँ कि आई थिंक kudos to myself. मेरे को ये यूट्यूब इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था. एंड देन आई चलो आफ्टर माई 10th मैंने थोड़ा रिसर्च करने का ट्राई किया इस पर बिकॉज आई थॉट वाई नॉट टू जस्ट गिव इट अ ट्राई. कि मतलब अगर तुमको इंटरेस्ट है उसमें, उस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे कोई भी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं एक्सेप्ट फॉर इन्फ्लुएंसिंग एंड एक्सेप्ट फॉर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. मेरे को किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था तभी एंड अभी भी नहीं है. सो आई थिंक लोगों के कहने पर या लोगों के इन्फ्लुएंस पर अगर मैं जाऊँ कि तुम हाँ होटल मैनेजमेंट कर लो, तुम डॉक्टर बन लो, या ये सब फील्ड्स में मैं नहीं कर सकती. एंड आई नो फॉर श्योर कि मैं ये फील्ड में एक्सेल करूँगी. आई नो फॉर श्योर कि मैं ये फील्ड में बहुत अच्छा करूँगी. एंड आई हैव जस्ट प्रॉमिस्ड माई पेरेंट्स कि मैं एक्सेल करूँगी ये फील्ड में. एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग मी अ लॉट. पेरेंट्स सपोर्ट ऑल्सो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे लिए या तुम्हारे करियर के लिए सपोर्ट ही नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट इन लाइक डूइंग इट. बिकॉज आई थिंक मैंने जब इनिशियली जब मेरे इनिशियल ईयर्स थे यूट्यूब के एंड जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब तब माई पेरेंट्स वर लाइक नो यू आर नॉट सपोज टू डू यूट्यूब इंस्टाग्राम एंड अदर फील्ड्स ऑफ सोशल मीडिया आर वेरी बैड. और फिर 2-3 महीनों के स्पैन में लाइक मेरे जो आंट है जो मेरे डैड की बेस्ट फ्रेंड की वाइफ है, उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. एंड फिर आई थिंक उससे ही मॉम डैड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है कि यूट्यूब इज़ नॉट बैड आइडिया. एंड फिर मेरे डैड is a singer, so he is like मेरा भी YouTube channel start कर दे. And he's so cute sometimes, like he just comes to me and says कि हाँ यार मेरा भी YouTube channel start कर दे, फिर मेरे भी सब्सक्राइबर्स होंगे ये वो. So he's just very curious to know about things. So I just love these things about them and I think parents का support for me is really very important. क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं सपोर्ट करते हैं तो शायद मैं अब तक इधर बैठ के आप लोग के सामने बात नहीं कर पाती. बिकॉज my mom and my dad are the most important things for me in my life. क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे हर एक लेवल पे सपोर्ट किया है, हर एक पीरियड में मुझे मेरा साथ दिया है. क्योंकि मैं अगर जो भी उनको बोलती थी कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना, हाँ तो जा ना होटल मैनेजमेंट में जा, कोई नहीं. मैंने जब उनको यूट्यूब के बारे में बताया तब दे वर अ लिटिल लो फॉर यूट्यूब बिकॉज उन्होंने देखा यूट्यूब करियर कैसा है एंड व्हाट फील्ड इज़ इट, सोशल मीडिया के रिलेटेड है. एंड इसीलिए उन्होंने ना बोला बिकॉज दे आर वेरी ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स. बोलते हैं ना वो मेरे पेरेंट्स हैं. बिकॉज आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या फिर आगे जाके तुमको तुम्हारा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो आगे चल के क्या होगा वो मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं. सो लाइक दे डू नॉट थिंक अबाउट द प्रेजेंट बट फॉर द फ्यूचर. सो अगर तुम्हारा अभी सपोज आई एम लर्निंग अ लैंग्वेज, सो अभी लर्न करके तुम्हारा आगे क्या फ़ायदा है वो अगर तुम्हें पता होगा, आई एम रेडी टू get you to learn a new language. That is my parents' mentality and I think it's cool enough because
तुमको फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ता है, बहुत नहीं तो भी थोड़ा तो सोचना ही पड़ता है, बिकॉज एवरीवन इज़ इनटू दैट फील्ड वेर इन तुम्हारे फ्यूचर में आगे जाके कितनी सैलरी होगी ये तो तुमको पता ही होगा. सो या आई थिंक दिस इज समवॉट लाइक मी बीइंग प्रोडक्टिव. हाउ डू यू डील विद द टॉक्सिक फ्रेंड्स? मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे 20-30 टॉक्सिक फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे. मेरी लाइफ में 3-4 टॉक्सिक फ्रेंड्स आके गए जो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर करके गए. आई फील बिकॉज टॉक्सिक फ्रेंड्स से ना मैंने एक लेसन सीखा है उनसे कि you don't have to be toxic to the others, and you have to be very polite, and you have to deal with these friends because this is life, and life में थोड़े बहुत ups and downs होते ही है सबके लाइफ में. मैं जब स्कूल में थी तब there were 2 best friends, I won't name them of course, but there were 2 best friends who used to backbitch about me a lot, and मुझे सुनाई देता legit, मुझे क्लियरली सुनाई देता वो लोग क्या बोलते थे, बट मैं ऐसे एक्ट करती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं है. एंड आई थिंक दैट वाज अ पीरियड व्हेन लाइक हमारा मेजर झगड़ा होने वाला था, क्योंकि यू कैन स्टैंड समवन हु इज टॉकिंग शिट अबाउट यू एंड तुमको वो सुनाई दे रहा है. बट आई कंट्रोल माई सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम्स. मतलब बहुत ज़्यादा बैकबिचिंग कर रहे थे यार वो लोग. मतलब मेरी कोई गलती है नहीं है फिर भी वो लोग करेंगे बैकबिचिंग यार. मतलब पता नहीं क्या मज़ा आता था. एवरी सिंगल पर्सन इन माई क्लास ऑफ माई स्कूल यूज टू लाइक स्टे अवे फ्रॉम मी बिकॉज उनको लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा रूड इंसान हूँ. बट 10th के बाद आई थिंक व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग टू मी दे वर लाइक हाँ ये दोनों बोलते थे कि ये बहुत ज़्यादा रूड है एंड ये बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा करती है, बट यू लिटरली सो कूल एंड यू आर वेरी पोलाइट and I love talking to you. Like yeah, I know these things have made me laugh to a very next level. And मैंने इसमें से like toxic friends and toxic people में से ये सीखा है कि never to backbitch about anyone एंड मतलब इधर का उधर चुगली नहीं करना. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. मैंने भी बचपन में बहुत चुगलियाँ की है यार. मैं आई वोंट डिनाई टू दिस. मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा चुगली की, मेरे को बहुत मार पड़ी है. बट आई हैव लर्नड थ्रू दीज ईयर्स दैट चुगली करना, लोगों के बारे में बैकबिचिंग करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. अगर जेन्युइनली मुझे लगता है कि वो गलत है तो हाँ मैं थोड़ी बहुत बैकबिचिंग करूँगी उसके बारे में. बट आई वुड प्रेफर मुँह पे बोलना उसके, बिकॉज उसको भी लगे ना कि हाँ भाई मैं गलत हूँ एंड आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ. सो आई थिंक आई वुड प्रेफर दैट ओवर बैकबिचिंग. एंड टॉक्सिक फ्रेंड्स से मैंने और एक लेसन ये सीखा है कि यू हैव टू डील विद दीज सिचुएशंस बिकॉज दिस इज़ लाइफ, एंड लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते ही है, सबके लाइफ में आते हैं. इट्स नॉट जस्ट मी और इट्स नॉट जस्ट यू. एवरीवन हैज़ दीज टॉक्सिक फ्रेंड्स इन देयर लाइफ, सो कॉल्ड लाइक बैकबिचर्स इन देयर लाइफ. आई थिंक everyone should deal with that, and I have come to this stage in my life कि मैं बहुत सारे toxic friends deal कर चुकी हूँ life में. And I've got this group of friends, 5 friends now in my college who are like my girlfriends, and I'm missing them a lot right now, and हम बहुत टाइम से मिले नहीं गए. But these friends of mine are so cool. Like we literally share the same bond with each other. एंड हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं, कोई बैकबिचिंग नहीं, कोई ऐसा एक होता है ना टॉक्सिक फ्रेंड्स जैसा. आई कुड प्राउडली से दैट दीज आर माई 4 बेस्ट फ्रेंड्स दैट आई हैव. एंड या आई मीन sounds very cool. The last bit for today is what's your snap ID. मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है, बट स्टिल आई वुड लेट यू गाइस नो अबाउट माई snap ID. ये इधर होगा snap ID मेरा. So yeah, I will see you guys in my next podcast. मैं तो अभी भी बोल सकती हूँ, but the time has increased to 30 minutes now, and I think I need to stop. I will see you guys in my next podcast. I hope you guys enjoyed listening and watching me as well. Thank you so much for tuning in to Unfiltered with Anushka. I'll see you guys next time. Till then, bye bye. Stay safe. Hello. काम नहीं कर रहा है ना, दिमाग खराब हो रहा है. सॉरी. क्या बोल रही है अनुष्का?
सॉरी कितना बोल रही हूँ मैं, मेरा ऐसा जॉ दुखने लग गया।